بچس منزہ شاہ ونکنچ اہم خبر ونو تہ گوڑے حب قدل پہ حب قدل دِژ أکۍ کورِ جہلمس منٛز ووٹ ونکس چھُ حب قدل ریسکیو آپریشن جاری SDRF QRF ٹیم چھِ ریسکیو آپریشن منٛز جُٹِتھ مزید زانکٲری ہیتھ کرو رخ سٲنِس نمائندس کُن تہِ تِم جلدی جُڑن اسہِ سۭتۍ دِن زانکٲری کہ ونکس یُس یہ ریسکیو آپریشن چھُ یہ چھا جاری تو SDRF ملے کانٛہہ کامیٲبی کِنہٕ نہ مگر تمہِ برونٛہہ اسرائیلٕکۍ فضٲیلی حملس منٛز گٔیہِ حماس چیف اسماعیل ہانیہ ہلاک تہران حملس منٛز گٔیہِ تِہنٛدۍ محٲفظ تہِ فوت ہانیہ ٲسۍ نو منتخب ایرانی صدر سٕنٛز حلف برداری تقریب منٛز شرکت خٲطرٕ ایران گٔمٕتۍ اسماعیل ہانیہ ٲسۍ حماسٕکۍ سیٲسی سربراہ تہٕ حماسٕکۍ پُلٹِکل بیوروہٕکۍ چیئرمین 2017 منٛز آیہِ تِم خالد مشعل سٕنٛز جایہِ حماسٕکۍ سیٲسی سربراہ مقرر کرنہٕ اسماعیل ہانیہ 1968 منٛز حماسِ قیام کہِ وقتہٕ اکھ نوجوان بانی کہِ رُکنہٕ کہِ حیثیت سۭتۍ کٔر تِمو اتھ منٛز شموٗلیت اختیار 1977 منٛز بنے حماسٕکۍ روحٲنی رہنما شیخ احمد یاسین سٕنٛدۍ پٔرسنل سیکرٹری 1968 منٛز کٔر تِمو گۄڈنِکۍ انتفادہس منٛز شرکت یتھ پٮ۪ٹھ تِمن اسرائیلن کٔر تِم 6 رٮ۪تن خٲطرٕ جیلس منٛز بنٛد اوسلو معاہدٕ پتہٕ گٔیہِ تِم رِہا کرنہٕ تہٕ تمہِ پتہٕ آیہِ اسماعیل ہانیہ واپس غزہ تاکہ پھر بیٚیہِ وَنو بہٕ تۄہہِ حب قدلہٕ چھےٚ اَکہِ کورِ جہلمس منٛز ووٹ دِژمٕژ ونکیٚس چھُ حب قدل ریسکیو آپریشن جاری سٲنۍ سٲتھی عرفان چھُ ونکیٚس اسہِ سۭتۍ حب قدل پٮ۪ٹھ جُڑِتھ عرفان اس وقت کی کیا صورتحال ہے اور ریسکیو آپریشن کے حوالے سے آپ کو کیا اپڈیٹ مل رہا ہے وہاں پر ہمیں بتائیں جی بالکل منظم بتانا چاہوں گا کہ 3:45 بجے کی یہ گھٹنا ہے لگ بھگ 17-18 سال کی جو یہ بچی تھی افرا اس کا نام بتایا جا رہا ہے وہ جو ہے اس دریا میں جو ہے اس نے چھلانگ لگا دیا اور اس کے بعد سے جو ہے وہ دھیرے دھیرے کافی بڑی سنکھیا میں لوگ موجود ہیں اس وقت بھی جو یہاں پر لوگ تھے انہوں نے صاف طور سے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ہے لوگوں نے عرفان آپ کی آواز ہم کلیئرلی نہیں سن پا رہے ہیں اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو وہاں پر جو لوگ موجود ہیں اور جو آئی وٹنس رہے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ کشمیری میں بات کریں ووٹ کیا سن یہاں پر لوگوں کی شکایت عرفان کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں یہاں پر ایک ہی ووٹ ہے یہاں پر عرفان کیا آپ تک میری آواز پہنچ پا رہی ہے یہاں پر جی ہاں بالکل جی عرفان آپ کی آواز ہم تک کلیئر نہیں پہنچ پا رہی ہے اور وہاں پر جو لوگ موجود ہیں کوشش کریں جو آئی وٹنس تھے ان سے بات کرنے کی اور ان سے درخواست کریں کہ وہ کشمیری میں بات کریں جی بالکل یہ بتائیے سر یہ گھٹنا تقریباً 3-3:30-4 بجے قریب 3 سے 4 کے بیچ میں کی ایک گھٹنا ہے تو جو لڑکی ہے اس نے وہاں سے چھلانگ لگا چھلانگ ایسے سننے میں آیا میں نے دیکھا نہیں سنا ہے پل سے چھلانگ ماری تو یہاں پر ابھی SDRF کی صرف ایک ہی بوٹ یہاں پر ایک بوٹ ہے سر کم سے کم 2-3 بوٹ ہونے چاہیے تھے کیونکہ پانی کا بہاؤ کم ہے اس وقت ڈیڈ باڈی کہیں یہی آس پاس ہوگی بعد میں پھر پرسوں ایک بچہ گیا تھا وہ پھر 9 دن کے بعد ادھر کیا بولتے ہیں اس کو پورم پورہ سے چھتا بل سے اس کی ڈیڈ باڈی پھر ملی ابھی ان کو ہم بول رہے تھے کہ اور 1-2 بوٹ لائیے تاکہ یہیں پر کہیں ڈیڈ باڈی ابھی ہوگی 3 بجے سے ایک بوٹ ڈھونڈ رہا ہے آپ خود ہی دیکھیے وہ ہے SDRF کی ٹیم سے جب بات ہوئی تو کیا کہنا انہوں نے بولا ہم نے آگے سگنل کی ہے وہ آتے نہیں یہ اس بچی کا چاچا ہے اچھا آپ اس بچی کے چاچا ہیں عرفان کشمیری میں ان سے کہیے گا بات کرنے کو تو آپ نے
जी, आप कश्मीरी में बोल सकते हैं, ये बताइए कि क्या शिकायत है यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चे आता है उसको भी खतरा है। नहीं, अब जो मसला हुआ ना, अब हम चाहते हैं कि 1-2 बोट और अगर आएंगे तो कम से कम कोई मसला हो जाएगा। अब इसको बार बार बोलता है बोट का फिर बोलता है हमने पाल किया तो यहाँ की आपकी शिकायत ये है कि बोट जो है और होनी चाहिए थी, गौताखोर होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, आप कश्मीरी में बोल सकते हैं। ये बताइए कि क्या लड़की का इलाज चल रहा था, उसकी ज़हनी हालत? अच्छा, तो ये कब से इलाज चल रहा था? 2 साल से इलाज चल रहा था। ज़हनी तौर पर हालत सही नहीं थी। अच्छा, तो यहाँ पर जो है आप लोग डिमांड करते रहते हैं फेंसिंग की। हालांकि जो नया पुल बना है उसकी फेंसिंग जो है वो हुई है, लेकिन ये जो नया पुल बना उसकी फेंसिंग है, लेकिन ये जो पुल है जिसको मॉडिफाई किया गया इसकी फेंसिंग नहीं है। खाली हमने फोन किया मैसेज किया वो बताएगा हमें क्या करना है, नहीं करना है तो जाएगा। फिर फायदा क्या है एक वोट का? एक आदमी इस पे काम करता है, आपने खुद भी देखा है, एक आदमी इस पे काम करता है। बिल्कुल आधी रस्सी छोड़ दिया फिर वापस आती क्या करेगा बेचारा? एक आदमी यहाँ पर उनकी वालदा भी जो है बच्ची की जिसका नाम इकरा बताया जा रहा है। ٹھیک پٲٹھۍ دوٚپُن مےٚ دِ فرض سکیورٹی सर्च ऑपरेशन चला रही है और यहाँ पर ये लोग मांग कर रहे हैं कि जी इरफान, जैसा कि ये लोग बता रहे थे कि 3 बजे ही मालूम हो चुकी थी और 3 बजे से अभी तक जो है बोट मैसर नहीं हो पाई थी। इसकी क्या वजूहत है कि बोट क्यों नहीं मिल पा रही थी इनको? जी, जब मैंने बात की इस ताल्लुक से SDRF की जो टीम से, तो उनका कहना था कि अभी हमारे पास जो है फिलहाल एक ही बोट अवेलेबल है। कल तक जो है कल सुबह तक और भी बोट जो है वो अवेलेबल हो पाएगी। अब उनकी क्या मजबूरी थी इस बारे में ज़्यादा डिटेल तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनका कहना था कि फ़िलहाल अभी हमारे पास से एक ही बोट जो है वो अवेलेबल है।
और देखिए नाराज़गी इस बात को लेकर के है कि एसडीआरएफ की एक ही टीम जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, नंबर 1। नंबर 2 कि देखिए ये जो पुल है जहाँ से उस लड़के ने छलांग लगाई थी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लंबे वक्त से यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पुल है उस पर फेंसिंग हो। हालांकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो नया पुल बना है, इस पुल के जस्ट पीछे जो है सीमेंट का नया पुल जो बना है, वहाँ पर जो है लोगों की मांग के बिना पर फेंसिंग की गई है वहाँ पर। लेकिन ये पुल जो है क्योंकि यहाँ पर लोग आते रहते हैं, यहाँ पर कियोस्क टाइप पर जो है यहाँ पर बनाया गया है, तो यहाँ पर लोग घूमने के लिए भी यहाँ पर आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर फेंसिंग नहीं है। लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि इस जगह पर भी फेंसिंग हो। देखिए इस तरह की जो घटना है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार इस तरह की घटना सुनने को मिल रही है। फेंसिंग भी हुई है कई ब्रिज पर, लेकिन अभी तक जो है इस तरह की जो घटना उस पर लगाम नहीं लगा है। और आए दिन इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सुनने को मिल रही हैं कि किसी ने छलांग लगा दी है, कोई डूब कर जो है वो फौत हो गया है। तो लोगों में नाराज़गी है इस बात को लेकर के भी कि एसडीआरएफ की टीम जो है वो एक ही है यहाँ पर। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ पर जो है फेंसिंग जो है इसकी नहीं हो पाई है, इस बात को लेकर के लोगों में नाराज़गी है। देखिए इस फैमिली की अगर बात कर ली जाए तो फैमिली बहुत गरीब है। इनके वालिद साहब जो हैं इफ़रा की जिसने इस नदी में छलांग लगा दी, वो ऑटो चलाते हैं। उसका एक भाई भी है जो कि वो भी ऑटो चलाता है, और एक बड़ी बहन है उसकी शादी हो चुकी है, ये छोटी बहन थी। और बताया ये जा रहा है बच्चे की सेहत के बारे में क्या कहा जा रहा था, क्योंकि आप इससे पहले जब बात कर रहे थे तो इनकी मेंटल हेल्थ के बारे में क्या कुछ आपको ये बता रहे थे इनके रिश्तेदार? जी मुनज़्ज़ा, मेंटल हेल्थ के बारे में यही जानकारी अभी तक मिल पाई है कि 2 साल से माफ़ कीजिएगा इस बच्ची का इलाज चल रहा था। ज़हनी तौर पर जो है ये लड़की बीमार थी और साइकियाट्रिस्ट के पास इसका इलाज चल रहा था। और जो है लेकिन जो है फ़िलहाल जो खबर है वो बहुत दुखदाई है। जिस तरीके से ये खबर मिली कि बच्ची ने जो है इस नदी में छलांग लगा दी, बहुत ज़्यादा डिटेल में घर वाले जो है अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लोगों में नाराज़गी है। और नाराज़गी की वजह मैंने आपको बताई कि 2 अहम वजह हैं। तो जो फैमिली है वो अभी यही चाह रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर और ज़्यादा आए और गोताखोर भी साथ जो है ज़रूर है। और 3 बजे क्योंकि ये मामला पेश आया है तब से जो है न बोट भेजी गई और फिर एसडीआरएफ की एक ही टीम वहाँ पर इस वक्त मौजूद है, तो इस हवाले से भी नाराज़गी। अगरचे मौके पर और बर वक्त कार्रवाई होती तो हो सकता है बच्ची बच भी जाती, लेकिन इतनी देरी में और अभी भी जो है देरी लगाई जा रही है, वोट नहीं मिल रही है और एसडीआरएफ की एक ही टीम है। बहरहाल आप इस खबर पर नज़र बनाए रखिए। इरफान, फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया। खबरों सिलसिले रोज जारी मगर तम वक्फ। महासचिव तरुण चुग ने भी एक्स पर पोस्ट कर कांस्य पदक जीतने पर मनु भाकर और सरबजोत सिंह को बधाई दी। देश विकास के पथ पर दौड़ रहा है। दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा कृषि बजट 4 गुना और रक्षा बजट 2 गुना तक बढ़ाया। एडवोकेट ताशी ग्यालसन ने तरुण चुग और भाजपा लद्दाख प्रदेश अध्यक्ष फुनचुक स्टैनसिन से नई दिल्ली में की मुलाकात, लद्दाख संबंधित मुद्दों पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर सिख समन्वय समिति की प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। महंत मंजीत सिंह ने सिख समुदाय के लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए उपराज्यपाल के नेतृत्व वाले यूटी प्रशासन का आभार व्यक्त किया। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में रचा इतिहास। पेरिस ओलंपिक से भारत को एक और मेडल। शूटिंग में मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने जीता ब्रॉन्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक पदक विजेता सरबजोत सिंह से की फोन पर बात। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारतीय जोड़ी का मुकाबला कोरिया की वोनहो और ओह ये जिन की जोड़ी के साथ था। मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने 16-10 के स्कोर से जीत अपने नाम की।
इससे पहले मनु भाकर महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी थी। वो अब एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। ओलंपिक में दूसरा मेडल जीतने के लिए पीएम मोदी ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को दी बधाई। कहा दोनों ने शानदार स्किल्स और टीम वर्क दिखाया। हरियाणा में फरीदाबाद के शूटिंग रेंज में मनु भाकर के मम्मी पापा ने केक काटकर बेटी की जीत का मनाया जश्न। जश्न के मौके पर लोगों ने भारत माता वक्फ पछ तुंद खैर मकदम श्रीनगर ऑटो रिक्शा ड्राइवर यूनियन हुंद वनुन छु कि ऑटो किरायन मज गस नजरसानी इन करना तिहुंद वनुन छु कि वरीवादो पेठ छुन ऑटो किरायन पेठ नजरसानी करना आमज कह यम वजह से तिम ऑटो ड्राइवर खसारस मज नुकसानस मज तिहुंद वनुन छु कि पछो 500 वरियो पेठ पेट्रोल तो दीगर चीजन हिज कीमत वारिया बड़ेमुत द्रोजर छु मगर सान किरायन मज छु वुन ति इजाफ यवान करना। हमारे आरटीओ साहब है उन तक पहुंचाना चाहता हूँ कि 31 जुलाई तक उन्होंने जो रेट की बात की थी, मीटर्स लगाने की बात की थी। देखिए मैंने पिछली बार भी कहा कि ऑलरेडी हमारे पास मीटर लगे हुए हैं, 4 से 5 हज़ार मीटर्स हमारे इंस्टॉल किए हुए हैं। तो हमने पिछली बार भी मांग की थी, गुजारिश की थी आला हुकाम से कि 2019 हो या 2021 हो, आज तक हमारी रेट्स जो रिवाइज़ नहीं हुए, आज से तकरीबन 4-5 साल हो गए। देखिए हम मीटर पे चलने के लिए एतराज़ नहीं करते, हम हमेशा हमने ताउन किया डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन हमारी कोशिश हमारी गुजारिश रही कि डिपार्टमेंट भी हमारे साथ ताउन करे। ऑटो चला रहा हूँ, हमको घर का गुजर बसर नहीं हो रहा है। हम सुबह निकलते हैं, दिन में हम 400-500 रुपया कमाते हैं। परसों मेरा बच्चा बीमार था, मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास 350 रुपया नहीं थे। मैं उसको डॉक्टर की फीस भरता, मुझे उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेना पड़ा। मुझे पूरा दिन उधर, मेरा दिन पूरा ज़ाया हो गया। दूसरे दिन फिर डॉक्टर ने टेस्ट वेस्ट रखे, मैं बाहर नहीं करवा सकता। 2-3 दिन मुझे उसी के साथ लग गए। इसमें एक स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एक होती है, दैट्स ए कमेटी हेडेड बाय द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। ये इशू उनके टेबल पे है। जैसे सरकार को लगेगा अप्रोप्रिएट रिवीजन करना है, मेरे पास बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आए हैं ये रिक्वेस्ट लेके कि रेट का रिवीजन हो जाएगा। तो जैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग हो जाएगी, ये इशू भी कंसिडर किया जाएगा। उसके तहत अगर ये मुनासिब समझेगी वो कमेटी कि रेट रिवीजन ड्यू बनता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पैरामीटर, टाइम के साथ साथ इन्फ्लेशन फैक्टर, फिर पेट्रोल का कॉस्ट तब क्या था आज क्या है। तो अगर कमेटी को लगेगा मुनासिब कि हाँ रेट दिलमजाओ CPE के इजलास मुनक़िद करने कारकुनान लीडरानो तो वर्करों को अत मज खासी तादाद मज शिरकत। इजलास मज कोर चेयरपर्सन सोनिया गांधी खिताब वनुक कौमी सलामती के सिलसिलस मज परेशान कुन खबर यवान सिर्फ जेम कमो बेश काह दहशतगर्द हमल गमुत। BJP पर तनकीद करान वनुक कि हमलों से गई मोदी हुकूमत के दावन हिज हकीकत साफ। BJP तर्जमान अल्ताफ ठाकुरन दित सोनिया गांधी सिंदिस बयानस पे रद्दमल वनुक जम्मू कशीर मज हालात नॉर्मल तो सोनिया गांधी पज कशीर यथ हिंदुस्तानुक झंड लहराउन। वनुक अस कशीर मज दहशतगर्दी खत्म करमज, कह पथराव, बाइकॉट कॉल या एहतजाज छुन वन गसान यम सत ये सबूत मिलान कि हालात बदलियमुत। तक जम्मू रीजन का ताल्लुक है, कुछ दहशतगर्द कामयाब हुए हैं जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने की है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि जम्मू में अब मिलिटेंसी और जम्मू मिलिटेंटों की बेस बन गई या वहाँ ऐसी कुछ हालत है कि वहाँ मिलिटेंट अपनी बेस बनाने में कामयाब हुए, क्योंकि जम्मू के लोग कभी उनको सपोर्ट नहीं करे। लेकिन एक पॉलिसी के तहत हिंदू डोमिनेटेड एरिया को चूज़ करना और वहाँ अटैक्स करना मुसलमान और हिंदू के दरमियान गैप पैदा करने की एक साजिश है पाकिस्तान की। लेकिन जम्मू सपोर्ट करेगा टेररिज्म को या जम्मू के लोग सपोर्ट करेंगे टेररिज्म या जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल को तारीखी फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से सदारत मज गई मीटिंग यथ मज मगरबी पाकिस्तान तो 1975 मज बेघर अफराद मालिकान हुकूक दिनुक फैसला करना आमुद। अम फैसले से मिले सास बद खानदानन बाइख्तियार बनावनस मज मदद। काबिल जिक्र कि 2019 मज तंजीम नौ पत मरकजी हुकूमतन दिस मगरबी पाकिस्तान बेघर अफरादन डोमसाइल हुकूक। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल की फैसलो तमाम तिमन खानदानन हिंद देरिना मुतालबात पूर करान यम वरीवाद पेठ अमिच मांग करान।
پاکستان شہر پارا چنارس مز جاری شیعہ مخالف تشددس خلاف نوگام سنواری مز آو احتجاجی مظاہرہ کرنے احتجاجو کر پاکستان مخالف ناربازی مظاہرین ہند ون کہ پاکستانی حکومت تت اقلیتی طبقس تحفظ فراہم کرنس مز مکمل طور ناکام گمز احتجاجو کر تشدد روکنش تو تحفظ دنک مطالبہ اس لیے کہ یہ جو پارا چنار میں ناحق قتل عام ہوا، بے گناہ انسانوں کو قتل کر دیا گیا، اسی کے ضمن میں آج یہاں نوگام چوک میں ہم جمع ہوئے اور اس غیر حرکت اور غیر شرعی حرکت اور غیر انسانی حرکت کو پرزور الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں اور ان وارثوں کے ساتھ، ان مظلوم کے ساتھ جموں کشمیر شیعہ تنظیمک صدر تو JKPC سینئر لیڈر عمران رضا انصاری کور پاکستانس من شیعہ فرقس پہ تشددس متعلق وزیر خارجہ اخ خط روان ونک تت صورتحال تشویشناک عمران رضا وون کہ پاکستانس من شیعہ فرقس پہ ظلم یوان کرنا کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اور JKPC کے سینئر لیڈر عمران رضا انصاری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیدھے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ آپ نے ودیش منترالیہ میں جو خط لکھا ہے کن باتوں کو لے کر یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ دیکھیے میں نے جو خط لکھا ہے اپنے جے شنکر جی کے نام پر وہ ان مظلوموں کے لیے لکھا ہے کہ جو کہ پاکستان کی بربریت کی وجہ سے قتل عام جو ہو رہا ہے۔ میں نے خاص طور پر اس بار پارا چنار کے بارے میں لکھا ہے کیونکہ پارا چنار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں سے جو قتل عام ہو رہا ہے وہ تھم نہیں رہا ہے، اور جو ہمارے دوست اور احباب وہاں سے جو ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان کی فوج ہے، جو ان کی ملٹری ہے، وہ ان دہشت گردوں کا پوری طرح سے ان کو مدد کر رہی ہے اور ہمارے کو جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ جو ہے پاکستانی آرمی کر رہی ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کورٹنیتک استر پر اگر بات چیت اگر ہو اس سلسلے میں تو کتنا یہ اہم بھومکا نبھا سکتی ہے؟ دیکھیے ہمارے ملک کا جو فارن منسٹر ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے پورے نیشنل کانفرنس وون کہ پارٹی کر جلدی پن منشور پیش ونک منشورس مز سیاسی سماجی روزگار تو دیگر مسائل زیر غور پارٹی کے طرف حلقہ انتخاب کولگامک بمبئی علاقس مز آئی ورکرز میٹنگ منعقد کرنا میٹنگ مز کر اسٹیٹ سیکرٹری سکینہ ایتو ترجمان عمران نبی ڈار ضلع صدر صفدر علی خان تو لیاقت علی خان علاوہ دیگر لیڈرانوں کے خطاب۔ یہ مینیفیسٹو کمیٹی بنائی گئی ہے جس کے چیئرمین ہمارے سینئر لیڈر عبدالرحیم راثر صاحب ہے۔ اس وقت 45 ڈیز کا ٹائم جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، تو ابھی ڈسکشن چل رہے ہیں، بہت ساری میٹنگز ہوئے ہیں، بہت سارے ڈسکشنز ہوئے ہیں، اس میں بہت سارے لوگوں نے حصہ بھی لیا ہے، بہت ساری لوگوں سے رائے مانگی گئی ہے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول ہو، کنسٹیچوئنسی لیول ہو، تو ابھی ہر ڈپارٹمنٹ کو لے کے چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے ہیلتھ سیکٹر ہو، بے روزگاری ہو، ہارٹیکلچر ہو، ایگریکلچر سیکٹر ہو، ہر سیکٹر پہ بات ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور یہ چاہے زمینوں کی بات ہو، چاہے نوکریوں کی بات ہو، ان سب چیزوں پہ ڈسکشن چل رہا ہے، اور انشاءاللہ جب یہ فائنلائز ہوگا تو بالکل آپ